discuss about the allotrope of carbon. What are the allotrope of carbon? First of all, we should have knowledge about the occurrence of carbon. कि कार्बन कैसे मिलता है. कार्बन हमारे पास नेचर में टू फॉर्म में मिलता है, फ्री स्टेट एंड द कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट मीन्स नेचुरली अकरिंग फॉर्म. These are getting under the earth crust. ये अर्थ के क्रस्ट के अंडर आपको मिलता है फ्री स्टेट कार्बन. फ्री स्टेट फॉर्म क्या है हमारी? डायमंड, ग्रेफाइट. और रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? बकमिंस्टर फुलरिन. दिस इज द फ्री स्टेट ऑफ कार्बन. Now the combined state of carbon, the carbon not only in the free state, it is combined with other element also. तो हमारे पास वो कंबाइंड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, पेट्रोलियम, वुड, कॉटन. दीज आर द कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलोट्रोप ऑफ कार्बन. Allotrope of carbon means a different form of carbon having various physical properties but same chemical. मतलब हमारे पास कार्बन की वो डिफरेंट फॉर्म कौन सी है? जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरिन. दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. दीज फॉर्म आर नोन एज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन. और हमारे पास एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एलोट्रोप. तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास? डायमंड, ग्रेफाइट एंड द बकमिंस्टर फुलरिन. Now we will discuss one by one the properties of diamond, graphite and Buckminster fullerene. Now we will discuss about the physical properties of diamond, allotrope of carbon. It is a colorless transparent substance. ये colorless transparent substance है having extraordinary brilliance. ठीक है. Second हमारे पास it is very hard in nature. Due to this hard nature, it is used for drilling in the rocks. It doesn't conduct electricity. ये electricity को conduct नहीं करता. It is a bad conductor of electricity. Chemical property: when diamond burn in the presence of oxygen, it produces the carbon dioxide. No residue left when diamond burn. This shows that diamond is a pure substance of carbon. Now the structure of diamond, you can see here each carbon, the structure of diamond. This is the structure of diamond. It look like these are the four corners of tetrahedron. ये हमें ऐसे फील हो रहा है जैसे हमारे पास ये टेट्राहेड्रन के फोर कॉर्नर्स. इसमें जो each carbon bonded to four other carbon atom by strong covalent bond. You can see here these are the covalent bond. Each carbon bonded to four other carbon atom by strong covalent bond. It is very difficult to these bonds. We need very large energy to break that bond. So its melting point is 3500 degree Celsius. Due to this strong covalent bond, it is rigid in nature. It is hard in nature. So it is known as the hardest substance that is used for drilling in the rocks. It is a bad conductor of electricity because each carbon is bonded to four other carbon atoms by strong covalent bond. No electron is free to move. आप देख सकते हो मैंने इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया डायमंड का कि एक कार्बन फोर कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के आउटर शेल में यू नोज दैट द फोर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फोर इलेक्ट्रॉन है, फोर के फोर यहाँ इनके साथ ज्वाइन है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ. नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव. कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए. सो डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Now the second allotrope of carbon, graphite. The physical properties of graphite: it is a grayish black opaque substance. The general example of graphite, the pencil lid. जो आप पेंसिल की लीड लेते हो पेंसिल के अंदर, वो हमारे पास एक ग्रेफाइट का एग्जाम्पल. इट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस. सेकेंड, इट इज लाइटर देन डायमंड. अगर आप उस पेंसिल की लीड को हाथ में लेकर देखते हो, यू कैन सी दैट इट इज लाइट सब्सटेंस, बहुत हल्का सब्सटेंस. ठीक है, और इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच.
अगर आप इसको टच करते हो तो ये सॉफ्ट है, स्लिपरी है, जैसे आपके पास ग्रीस है। ग्रीस क्या है? ग्रेफाइट का ही एग्जांपल है। इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच। अगर आप हाथ में लेते हो तो वो स्लिपरी नेचर का, यू कैन सी इट। नाउ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, it is a good conductor of electricity. Now the chemical property, it also produces carbon dioxide gas on burning like a diamond. When you burn the graphite, it doesn't produce any residue, it doesn't left any residue. अगर आप ग्रेफाइट को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे पास कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन। Now we will discuss about the structure of graphite. हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? You can see here it exists in the form of layer. There I have written here two layers. First layer and this one is the second layer. Here graphite exists in layers. जो ग्रेफाइट है हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में मिलता है। You can see here these layers are joined by the weak van der Waals force. This is the weak van der Waals force, and this weak van der Waals force is very weak. तो दिस वीक होने की वजह से these layers can slip over each other, एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो सकती हैं। So the graphite is soft and slippery in nature. इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है और स्लिपरी इन नेचर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वीक van der Waals force between the layers. इन लेयर्स के बीच में वीक van der Waals force. Now the graphite is a good conductor of electricity because here you can see that the each carbon bonded to three other carbon atom, 1, 2 and 3. Each carbon bonded to three other carbon atom by strong covalent bond and one electron is free to move. और एक इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के आउटर शेल में 4 है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए। सो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो हमारे पास गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये रीजनिंग के लिए क्लियर हो गया कि फिजिकल एंड दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, Buckminster Fuller. This is the recently discovered allotrope of carbon. This allotrope of carbon having 60 carbon atom in a molecule. इस जो कार्बन में Buckminster Fuller एलोट्रॉप में हमारे पास 60 कार्बन एटम्स ज्वाइंड हैं और 60 कार्बन एटम आर ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल। जो इसकी शेप है वो लाइक अ फुटबॉल। our scientist, our architect Buckminster Fuller used these Fuller to design the international exhibition. उसने इस एग्जीबिशन में डिजाइन की हुई ये फुलर है उसको डिजाइन इसको इंटरनेशनल एग्जीबिशन में यूज किया था। इट लुक लाइक अ डोम शेप। इसकी एक शेप जो होती है डोम की शेप होती है, लाइक अ फुटबॉल शेप है। ठीक है, तो हमारे पास जो 60 कार्बन एटम्स हैं उसमें हमारे पास फुटबॉल की जो शेप है इट हैज सम पेंटागन एंड हेक्सागन। ठीक है, जो कार्बन एटम ज्वाइंट हैं दे लुक लाइक अ पेंटागन एंड हेक्सागन। तो इसमें हेक्सागन 20 हेक्सागन है और 12 पेंटागन रिंग्स हैं हमारे बकमिंस्टर फुलरिंग जो एलोट्रॉप है। इट इज डार्क सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। ये डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। डायमंड इज हार्ड इन नेचर एज आई टोल्ड यू बिफोर। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर बट इट इज नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट इन नेचर। ना ये हार्ड है नेचर में और ना ये सॉफ्ट है नेचर में। The uses of each allotrope. We will discuss the uses of each allotrope. I discussed before the properties of each allotrope. Now I am telling you about the uses of each allotrope. The first use is of diamond. As I told you about the diamond structure, it's a bad conductor, sharp edges. Due to this nature, diamond is used in many things. First, it's used for making the jewelry. ज्वेलरी बनाने में यूज होता है बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंस। इसकी जो चमक है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। इट कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट द लाइट। ये लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों कर सकता है। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। इसीलिए इसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। सेकेंड, बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एजेस। आपने जो स्ट्रक्चर है उसमें देखा था कि इसकी एजेस जो है वो शार्प है, टेट्राहेड्रल फॉर्म है।
So due to that sharp edges, it is used to remove the cataract. आई सर्जन इसको कैटरेक्ट को रिमूव करने में यूज करते हैं. नाउ थर्ड वन, बिकॉज इफ इट्स हार्ड नेचर, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, it is the hardest allotrope of carbon, so it is used for drilling rocks and cutting. It is used for making the filament of bulb also from the tungsten. टंगस्टन वायर से पतली सी एक वायर निकालना जो फिलामेंट की फॉर्म में यूज होती है बल्ब के अंदर, ग्लास कटिंग में वहाँ यूज होता है हमारे पास डायमंड. Now we will discuss about the uses of graphite. The second allotrope of carbon, graphite. The physical properties of graphite, it is a greyish black opaque substance. The general example of graphite, the pencil lid. जो आप पेंसिल की लीड लेते हो पेंसिल के अंदर, वो हमारे पास एक ग्रेफाइट का एग्जाम्पल. इट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस. सेकेंड, इट इज लाइटर देन डायमंड. अगर आप उस पेंसिल की लीड को हाथ में लेकर देखते हो, यू कैन सी दैट इट इज लाइट सब्सटेंस, बहुत हल्का सब्सटेंस. ठीक है. और इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच. अगर आप इसको टच करते हो तो ये सॉफ्ट है, स्लीपरी है. जैसे आपके पास ग्रीस है, ग्रीस क्या है, ग्रेफाइट का ही एग्जांपल है. इट इज सॉफ्ट एंड स्लीपरी इन टच. अगर आप हाथ में लेते हो तो वो स्लीपरी नेचर का, यू कैन सी इट. नाउ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now the chemical property, it also produces carbon dioxide gas on burning like a diamond. When you burn the graphite, it doesn't produce any residue, it doesn't left any residue. अगर आप ग्रेफाइट को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे पास कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता. इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन. Now we will discuss about the structure of graphite. हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, you can see here. It exists in the form of layer. There I have written here two layers. First layer and this one is the second layer. Here graphite exists in layers. जो ग्रेफाइट है हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में मिलता है. You can see here these layers are joined by the weak van der Waals force. This is the weak van der Waals force. And this weak van der Waals force due is very weak. तो दिस वीक होने की वजह से these layers can slip over each other. एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो सकती हैं. So the graphite is soft and slippery in nature. इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है और स्लिपरी इन नेचर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वीक van der Waals force बिटवीन द लेयर्स. इन लेयर्स के बीच में वीक van der Waals force. Now the graphite is a good conductor of electricity because here you can see that the each carbon bonded to three other carbon atom, 1, 2 and 3. Each carbon bonded to three other carbon atom by strong covalent bond and one electron is free to move. और एक इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के आउटर शेल में 4 है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए. सो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो हमारे पास गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो हमारे पास ये रीजनिंग के लिए क्लियर हो गया कि फिजिकल एंड दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, Buckminster Fullerene. This is the recently discovered allotrope of carbon. This allotrope of carbon having 60 carbon atom in a molecule. इस जो कार्बन में Buckminster Fullerene एलोट्रॉप में हमारे पास 60 कार्बन एटम्स ज्वाइंड हैं और 60 कार्बन एटम आर ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल. जो इसकी शेप है वो लाइक अ फुटबॉल. Our scientist, our architect Buckminster Fuller used these Fuller to design the international exhibition. उसने उस एग्जीबिशन में डिजाइन की हुई ये फुलर है उसको डिजाइन इसको इंटरनेशनल एग्जीबिशन में यूज किया था. इट लुक लाइक अ डोम शेप. इसकी एक शेप जो होती है डोम की शेप होती है, लाइक अ फुटबॉल शेप है. ठीक है. तो हमारे पास जो 60 कार्बन एटम्स हैं उसमें हमारे पास फुटबॉल की जो शेप है इट हैज सम पेंटागन एंड हेक्सागन. ठीक है. जो कार्बन एटम ज्वाइंट हैं दे लुक लाइक अ पेंटागन एंड हेक्सागन. तो इसमें हेक्सागन 20 हेक्सागन हैं और 12 पेंटागन रिंग्स हैं हमारे बकमिंस्टर फुलरीन जो एलोट्रॉप है. इट इज
डार्क सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, ये डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर. डायमंड इज हार्ड इन नेचर एज आई टोल्ड यू बिफोर. ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर बट इट इज नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट इन नेचर. ना ये हार्ड है नेचर में और ना ये सॉफ्ट है नेचर में. नाउ द यूजेस ऑफ ईच एलोट्रॉफ. We will discuss the uses of each allotrope. I discussed before the properties of each allotrope. Now I am telling you about the uses of each allotrope. The first use is of diamond. As I told you about the diamond structure, it's a bad conductor, sharp edges. Due to this nature, diamond is used in many things. First, it's used for making the jewelry. ज्वेलरी बनाने में यूज होता है बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस. इसकी जो चमक है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. इट कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट द लाइट. ये लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों कर सकता है. सो इट इज यूज फॉर मेकिंग द ज्वेलरी. इसीलिए इसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं. सेकेंड, बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एजेस. आपने जो स्ट्रक्चर है उसमें देखा था कि इसकी एजेस जो है वो शार्प है, टेट्राहेड्रल फॉर्म है. So due to that sharp edges, it is used to remove the cataract. Eye surgeon इसको cataract को remove करने में use करते हैं. Now third one, because if it's hard nature, it is the hardest substance. It is the hardest allotrope of carbon. So it is used for drilling rocks and cutting. It is used for making the filament of bulb also from the tungsten. टंगस्टन वायर से पतली सी एक वायर निकालना जो फिलामेंट की फॉर्म में यूज होती है बल्ब के अंदर. ग्लास कटिंग में वहां यूज होता है हमारे पास डायमंड. नाउ द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेटिंग इन मशीनरी पार्ट्स. इट वर्क एट अ हाई टेम्परेचर आल्सो. व्हेन मशीन्स parts are moving, machinery are moving at high temperature, this lubricating substance graphite we can use because here the ordinary lubricating oil doesn't work. machinery part में जब high temperature हो जाता है तो दूसरा जो simple हमारा lubricating oil है वो वहाँ पर work नहीं करता. there we use the graphite. वहाँ पर हम use करते हैं graphite. second, when इट इज यूज फॉर मेकिंग द कार्बन इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल. आपके जितने भी ड्राई सेल हैं उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज होता है ग्रेफाइट बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज आल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन ब्रशेस. जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनमें कार्बन ब्रशेस की फॉर्म में भी यूज होता है हमारा ग्रेफाइट. नाउ थर्ड वन, इट इज यूज फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ पेंसिल. जो ये हमारी पेंसिल की कोर है, पेंसिल लिड है, तो वहां पर भी यूज होता है ग्रेफाइट बिकॉज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर. इट इज ब्लैक इन कलर. इट कैन मेक लाइंस ऑन द पेपर. ये ब्लैक नेचर होने की वजह से, सॉफ्टनेस होने की वजह से तो इसे ब्लैक लाइंस बन सकती है. और जब ये पेंसिल लिड बनाया जाता है देन ग्रेफाइट इज मिक्स्ड विद क्ले. क्ले के साथ मिक्स करके देन वी मेक द पेंसिल लिड.